and welcome back to Olam Tech. This is your go-to channel for mastering microcontroller programming, and I am thrilled to have you here for our third lecture in Arduino Uno bare metal programming series. Today, we will dive into three exciting topics: the difference between bare metal programming and functional programming, understanding why bare metal programming gives us ultimate control, a deep dive into I/O registers and bit manipulation, the foundation of hardware-level programming, and finally, we will bring it all together by interfacing an LED with the Arduino Uno, complete with program code and a Proteus simulation demonstration. So grab your Arduino Uno and let's get started. The difference between bare metal programming and functional programming. The bare metal programming refers to directly writing code for the microcontroller hardware without relying on an operating system or abstraction layers like libraries. In Arduino, it means bypassing the Arduino libraries and frameworks, interacting directly with the hardware. Characteristics: no dependencies on the Arduino core libraries like wire, serial, etc. Focus on controlling hardware features like GPIOs, timers, its ADC peripherals directly. May still use register level programming to configure and control peripherals. Requires an understanding of microcontrollers architecture and peripherals. Examples: writing a program to toggle a pin directly using the port X DDRX registers rather than using digital wire write. Functional programming. Functional programming in Arduino emphasizes using functions and abstractions provided by the Arduino framework to interact with hardware. It hides the complexity of registers level operations. Characteristics: high-level abstraction relies on Arduino provided functions, digital write and analog read, etc. Easier to learn and use, beginner-friendly, allowing quick prototyping. Edge overhead due to abstraction layers, requires the Arduino libraries and runtime environment. Key differences: abstraction level, bare metal programming abstraction level is very low, direct hardware access, and the functional programming abstraction level is very high. Use Arduino functions. Easy of use. Bare metal obviously is complex, requires knowledge of hardware registers, and the functional programming is very simple and beginner friendly. Performance: high performance. Bare metal is high performance, minimal overhead, and the functional programming is lower performance and due to abstraction layer. Code complexity: bare metals have the detailed and verbose code, and the functional programming compact and readable. Hardware dependency: the bare metal programming have tightly coupled with the microcontroller architecture, but the functional programming portable across Arduino compatible boards. And the last, the application: the bare metal programming time critical and resource sensitive projects, but the functional programming is rapid prototyping and general purpose projects. And the second topic is input-output registers and pin manipulation. The first register is DDRX, data direction register for port X. X means port B, port C, and port D. Purpose: configure the direction of each pin in the port as either input or output. Uses: set a pin Z1 if we set a pin 1, a bit 1, to configure the corresponding pin as output, and if set a bit 0 to configure the corresponding pin as input. Example: DDRB is equal to 0xFF. Set all pins of the port B as output, and the second line is DDRB and equal to invert of 1 less than sign is equal to PB0, sets PB0 as an input. The second register is port X, data register for port X, port B, C, and D. X means port B, port C, and port D. Purpose: control the port value of the pin or enables, disables pull-up registers for input per pins. Usage: for output pins, set bit 1 to drive the corresponding pin high, logic level 1,
and set the bit 0 to drive the corresponding pin low logic level 0. For input pins, use the internal pull-up. Set a bit 1 to enable the internal pull-up register and set a bit 0 to leave the pin floating high impedance. Examples: port B is equal to 0xFF, set all pins of the port B high, and port B and equal to invert of 1 less than into BB0, set BB0 low if configured as output. The last register is pin X, pin input register for port X. X means port B, C and D. Purpose: read the logic level high or low present on pins. Usage: read the value of a specific pin regardless of whether it is configured as input or output. Useful for detecting the state of input pins. Examples: if pin B and 1 less than PB0, check if PB is high, and UINT 8_T is a data type, integer type data type, unsigned integer type data type. Pin state is equal to pin B reads the entire port B state, and this is the port as general digital I/O. This is the DDR-XN register and port XN register and pin XN register. Port I/O registers, port B I/O registers, port P, PB0, port B0, port B1 up to so on port B7, and then 0x05 is the address of the port B register. DDRB, port B data direction register, DDB0, DDB1 up to so on DDB7 registers, and pin B, the port B input pins addresses, pin B0, pin B1 up to so on pin B7. The second one is port C registers, port C, DDRC and pin C registers, and the last one is port D I/O registers, port D registers, DDRD direction registers and pin D direction input registers. एक LED इंटरफेस करवाते हैं आर्डिनो उनो माइक्रो कंट्रोलर यानी कि Atmega 328P माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और LED कनेक्ट करेंगे PB5 के पिन के साथ यानी कि पोर्ट B की पिन नंबर 5 के साथ, और उसको टॉगल करवाते हैं विद सम डिले। सबसे पहले हम LED को डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन LED PB5। उसके बाद हम आ जाएंगे इंट मेन लिखेंगे, और मेन में सबसे पहले PB5 को हमने आउटपुट डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए जो रजिस्टर है वो है DDRB। अब उस पिन को 1 करना है तो उसके लिए हम और इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करें। ये कंपाउंड ऑपरेटर है, ये मल्टीपल कंपाउंड ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ये और कंपाउंड ऑपरेटर है, अगर हमने पूरी पोर्ट नहीं सिर्फ एक सिंगल पिन या मल्टीपल पिन्स को 1 करना है तो उसके लिए हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर पिन्स को क्लियर करना है तो उसके लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर टॉगल करवाना है तो उसके लिए एक्सऑर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लाइंस हैं वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लाइंस होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे DDRB करेंगे और 1 लेसन ऑपरेटर के साथ हम LED लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये जो पिन है ये बेसिकली ये जो कोड लाइन है ये LED यानी PB5 पिन को 1 कर रही है, और 1 करने के बाद और ऑपरेटर और कंपाउंड ऑपरेटर करवा के पोर्ट B के ऊपर यानी कि DDRB रजिस्टर के अंदर वो सेट करिए। इसको हम मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। पहले इसके कमेंट लिख लेते हैं। आउटपुट में इसको मल्टीपल मेथड से लिख सकते हैं। सबसे पहला ये है कि हम पिन्स देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी हैं। ये DDB7, उसके बाद DDB6, DDB5,
DDP4, DDP3, DDP2, DDP1, DDP0। टोटल हमारे पास जो पिंस हैं वो 8 पिंस हैं। अब इसमें सिर्फ जो पिन हमने वन करनी है वो है 5 नंबर DDP5, इसको वन करना है। इसके लिए यहाँ पे मैं कोड लाइन्स जो है वो लिख लेते हैं और इसका एक कोड जनरेट करवा लेते हैं। सबसे पहले आते हैं जी DDP7, इसको हमने 0 करना है, DDP6 को 0 करना है, DDP5 को 1 करना है, DDP4 0 करनी है, DDP3 0 करनी है, 2 0 करेंगे, 1 0 करेंगे और 0 को 0 करेंगे। तो ये हमारे पास कोड बन जाएगा 0 0 0, ये 0 बन जाएगा हेक्स में, और 0 0 1 0 ये हमारे पास 2 बन जाएगा हेक्साडेसिमल में। क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में इसको देखना होता है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर जब इसका हम कोड लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0x20, और इसके साथ वही प्रोग्रामिंग लाइन हम लिख लेते हैं, रजिस्टर लिख लेते हैं DDRB और इक्वल टू 0x20। तो हम ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं DDRB और इक्वल टू 0x20, या फिर हम ये वाली लाइन DDRB और इक्वल टू 1 लेस देन LED ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद while 1 लिखेंगे। while 1 के अंदर हमने इस LED को ऑन करवाना है, तो LED को ऑन करवाने के लिए जो रजिस्टर है, यानी आउटपुट सेंड करनी है, तो आउटपुट सेंड करने के लिए रजिस्टर है पोर्ट B और इक्वल टू। अब हमने इस LED को ऑन करवाना है, तो उसके लिए और इक्वल टू का कंपाउंड ऑपरेटर यूज होगा, क्योंकि हम उस पोर्ट पिन के ऊपर PB5 के ऊपर 1 सेंड करें। LED1 LED LED सॉन्ग। अब इसको भी लिखने के लिए हम कोड भी लिख सकते हैं पोर्ट B और इक्वल टू 0x20। तो 0x20 लिखेंगे तो इससे भी LED ऑन हो जाएगी। उसके बाद डिले देना है, डिले मिली सेकंड। हम मिली सेकंड का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और 1000 उसमें नंबर एंटर करेंगे, तो ये 1000 मिली सेकंड यानी कि 1 सेकंड का डिले जनरेट हो जाएगा। उसके बाद LED को ऑफ करवाना है, तो पोर्ट B एंड इक्वल टू इन्वर्ट ऑफ 1, LED को ऑफ करवा देंगे। इसके लिए भी हम जो प्रोग्राम है वो मिस्टर से लिख सकते हैं, एंड इक्वल टू इन्वर्ट ऑफ 0x20। इसका सेकंड मेथड भी है कि हम इन पिंस को, जो पिंस हमने सिर्फ 0 करनी है उसको हम 0 कर दें, बाकी सारी पिंस को 1 कर दें। तो इसके लिए यहीं पे करवा लेते हैं, उसका नंबर जनरेट करवा लेते हैं, तो ये 1 आ जाएगी, ये वाली पिन भी 1 हो जाएगी। DDP6 यानी कि ये DDP6 है, और ये पोर्ट हम इसको कहते हैं कि ये पोर्ट भी है, पोर्ट की पिंस भी ऐसे ही हैं, और जो DDP है DDR रजिस्टर उसकी भी पिंस ऐसी हैं। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, DDP नहीं कहते हम इसको, सिंपल B6 कह देते हैं, पोर्ट B ऐसे ही है। DDP की पिंस भी होंगी और पोर्ट B की पिंस भी होंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस पिन को बंद कर देते हैं। ये वाली PB5 0 हो जाएगी, PB4 1, PB3 1, PB2 1, PB1 1 और PB0 भी 1।
तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पोर्ट बी एंड इक्वल टू, इसका जब हम कोड जनरेट करवाएंगे तो ये हमारे पास हेक्स में एफ बन जाएगा और ये हेक्स में हमारे पास डी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0xDF। तो वही कोड लाइन हम यहाँ भी लिख देते हैं, पोर्ट बी एंड इक्वल टू 0xDF। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इस तरह से भी एलईडी को ऑफ करवा सकते हैं। सेकंड ये है कि इससे भी हम एलईडी को ऑफ करवा सकते हैं, जिसमें वही कोड हम जनरेट कर रहे हैं इसको इन्वर्ट कर दिए। जब इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने से एक्चुअली वो ये वाला नंबर 0xDF ही बन जाता है, या फिर हम एलईडी को इस तरीके से ऑफ करवा सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं जो हमने एलईडी पहले ऑफ की थी। इसके बाद यहाँ पे डिले दे देंगे #millisecond और इसमें 1000 यानी कि 1 सेकंड का डिले ऐड कर देते हैं। वन सेकंड पे 1 सेकंड के लिए। अब इस प्रोग्राम को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मेथड भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेकिन उसको कमेंट कर देते हैं। इंट में इसमें सबसे पहले हम DDRB इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद वाइल वन के अंदर पोर्ट बी एक्सॉर इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। अब एक्सॉर इक्वल टू ऑपरेटर अगर एलईडी ऑन है या पिन ऑन है तो उसको 0 कर देगा, अगर पिन 1 है तो 0 कर देगा, पिन 0 है तो उसको 1 कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं 1 लेस देन एलईडी। तो यहाँ हम कर देंगे जी एलईडी या PB5। इसके लिए जो कोड लाइन है वो भी हम लिख सकते हैं, पोर्ट बी एक्सॉर इक्वल टू 0x। इसके लिए जो कोड लाइन है वो भी हम लिख सकते हैं 0x20, यहाँ पे कोड लाइन लिख सकते हैं। और उसके बाद हम इसका डिले दे देंगे, डिले अंडरस्कोर मिलीसेकंड, और ये 1000 यहाँ पे डिले दे देते हैं। वन सेकंड के लिए। तो ये प्रोग्राम भी ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 लाइन्स हैं प्रोग्राम की हमारी कम हो गई हैं, लेकिन इसको भी कमेंट कर देते हैं, बाद में इसको हम चला कर चेक करेंगे। पहले वाला प्रोग्राम जो उसको चला कर चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इस पूरे के पूरे ब्लॉक को कमेंट कर दिया है और इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। सबसे पहले आर्डिनो सेलेक्ट करेंगे, आर्डिनो उनो। उसके बाद फाइल्स में जाके प्रेफरेंस में हमने कंपाइल को क्लिक कर देना ताकि इसकी हेक्स फाइल जनरेट हो जाए, और इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से यहाँ पर हेक्स फाइल जनरेट होगी और उसका लिंक आ गया। तो हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और प्रोटीज में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले आर्डिनो उनो सिलेक्ट करना है। आर्डिनो उनो एक एलईडी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक हमने रेजिस्टेंस लेनी है। PB5 क्योंकि आर्डिनो की पिन नंबर 13 है और ये पोर्ट बी की पिन नंबर 5 है। उसके साथ एक एलईडी अटैच करेंगे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलईडी के वोल्टेज कितने हैं। एलईडी है 2.2 वोल्ट की और 10 मिली एम्पियर करंट है। तो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर से हम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं। आर्डिनो पिन 5 वोल्ट अप्लाई कर रही है, 5 वोल्ट आउटपुट के ऊपर प्रोड्यूस कर रही है। तो एलईडी को रिक्वायर्ड है 2.2 वोल्ट, तो जो रिमेनिंग 2.8 वोल्ट हैं वो हम रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप करवाएंगे और इस सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगी वो 10 मिली एम्पेयर है। अब हमें रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पता चल गया, वो 2.8 वोल्ट है और जो करंट फ्लो करेगी वो 10 मिली एम्पेयर है। तो सिंपल ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो R इज इक्वल टू V ओवर I आ जाएगा। 2.8 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पेयर करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 280 ओहम। तो
तो 280 ओम की हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। उसके बाद हमें ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड अटैच कर देंगे और इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम जो लिंक हमने कॉपी किया है हेक्स फाइल का वो पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद एलईडी को सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब ये एलईडी 1 सेकंड डिले के साथ ऑन हो रही है और 1 सेकंड डिले के साथ ऑफ हो रही है। तो ये हमारा जो सर्किट है ये ठीक चल रहा है। अब जो दूसरा प्रोग्राम था, जो सेकंड मेन हमने लिखा था जिसमें हमने एक्सॉर ऑपरेटर यूज़ किया, उसको अनकमेंट कर देते हैं और जो फर्स्ट वाला है इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हम सेकंड वाला जो कोड लाइन है उसको भी चेक कर सकें। तो ये फर्स्ट वाले को हमने कमेंट कर दिया है, सेकंड वाले को अनकमेंट कर दिया है। इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। जब हम एक ही सर्किट यूज़ कर रहे हैं एक ही आर्डिनो प्रोग्राम के साथ, तो हमें मल्टीपल टाइम उसका जो एड्रेस है उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपली सिमुलेशन को एक दफ़ा स्टॉप करेंगे और दोबारा से सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो वो जो न्यू कोड होगा वो इसके अंदर बर्न हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू कोड है वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। आज के लेक्चर के लिए इतनी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।